Hello students, I hope all of you are doing perfectly fine. In this video series, I have been explaining to you the chapter of partnership, final accounts. For the previous few videos, I have already explained the basics as well as two questions with very simple things in the trial balance as well as a few adjustments. In this particular video, we will go one step ahead and few new elements in the trial balance and one or two new adjustments. Quickly, before I actually start to explain today's question, let me give you an idea about what is my style of going about teaching students, whether it is physically in a classroom or whether it is through this digital platform. I take things a little bit slow, then progress ahead. I hope you understand that कि a child, जब भी एक बच्चा पैदा होता है ना, जो उसको खिलाया जाता है वो सिंपल होता है क्योंकि उतना वो डाइजेस्ट कर सकता है. सेरेलैक होता है, दूध होता है. स्टार्ट में ही चिकन मटन उसको नहीं दिया जाता क्योंकि वो पचेगा नहीं उसे. तो उसी तरह सिंपल रखेंगे, थोड़े थोड़े करके जैसे ही ये वीडियो सीरीज आगे जाएगी, हमारे सम्स आगे जाएंगे, हम थोड़े थोड़े नए एडजस्टमेंट्स पढ़ लेंगे. I just want to make sure that you are comfortable with the chapter of final accounts because it's not just this particular chapter but it is related to many other chapters in this year of SYJC itself. Just a quick reminder, if you have not seen the previous videos, just make sure I'm providing you a card right now. You can click on that and you will be directed to that particular video, or a link at the end of this is going to be provided to the entire list of all the videos that has been put up at this channel. Let us get started. We start with a sum. Amar and Akbar are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Please note 3:2 means a total of 5. So the fraction that you get from this is 3/5 and 2/5. That is basically called as the profit sharing ratio. And later on, whenever you find out profit during the solution, 3/5 will be going to Amar and 2/5 will be going to Akbar. We will be doing this later. From the following trial balance and additional information, prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and a balance sheet as on that date. Year ending is always going to be 31st March. In this sum it is 2019. That is the end. The beginning is going to be 1st April 2018. Final accounts हमेशा एक साल के लिए होता है. तो इस क्वेश्चन में एक साल 1st April 2018 से लेकर 31st March 2019 तक है. When we solve final accounts, 4 steps होते हैं उसके अंदर. पहला स्टेप mark the trial balance होता है. That is what we are starting right now. Trial balance में जो markings होते हैं, example, trading का marking होता है, profit and loss का, asset, liability, partners, capital. जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो वो मार्किंग मैंने किए हैं. ये कोई कंपलसरी नहीं है कि यही शॉर्ट फॉर्म आपको यूज करना है. आप अपना भी शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, बट मार्किंग करना बहुत जरूरी है. पहले ट्रायल बैलेंस का और उसके बाद एडजस्टमेंट्स का. तो ट्रायल बैलेंस के साथ हम अभी स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट आइटम ऑन द डेबिट साइड इज लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग होता क्या है? लैंड मतलब प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी अगर आपने खरीदा है आपको तो काम आएगा ही ना. उसके बाद में हो सकता है आपके बच्चों को भी काम आएगा. अगर गांव में प्रॉपर्टी थी, लैंड था, तो उसके ऊपर खेती बाड़ी होती है और हो सकता है काफी सालों से उसके ऊपर खेती बाड़ी हो रही है और गांव में जो परिवार है उनका परिवार चलता इसी की कमाई से होता है. बिल्डिंग को अगर अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे तो वो 50-60 साल या उसके ऊपर भी काम आता है. सो इट इज यूजफुल इन द फ्यूचर. ये फायदेमंद है फ्यूचर में. इसके लिए इसका जो मार्किंग है वो है एसेट. इसके बाद फर्नीचर है. ये आपके घर पे जो कुर्सी है, जो चेयर है, जो टेबल है, जो अलमारी है, जो कबर्ड है, ये सब काम आता है. या तो बैठने के लिए काम आता है या तो स्टोरेज के लिए काम आता है और काफी टाइम तक, काफी सालों तक अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है तो इट इज यूजफुल इन फ्यूचर फर्नीचर. देयरफॉर द मार्किंग इज एसेट. डेटर्स का मतलब क्या होता है? कस्टमर्स, ग्राहक. मैंने पहले भी बताया है
हर सम में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई भी सम में आपके पास डेटर्स नहीं होंगे, कस्टमर्स नहीं होंगे, क्योंकि बिना डेटर्स के कोई बिजनेस होता ही नहीं है, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो प्लीज याद रखना कि डेटर्स जो होते हैं, अगर डेटर है तो बिजनेस का भविष्य है, फ्यूचर में काम आता है। इसके लिए डेटर्स को हम क्या कहते हैं? एसेट। उसके बाद स्टॉक, दो टाइप के स्टॉक होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। तारीख देख लीजिए, फर्स्ट का मतलब ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा पहले से ही लिखा होता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, देयरफॉर इसका मार्किंग है ट्रेडिंग। बैड डेट का मतलब क्या है? कस्टमर आपका पैसा लेकर चला गया है, और कस्टमर कब बनता है? प्रोडक्शन के बाद। प्रोडक्शन के बाद जो भी होता है सब जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये क्वेश्चन में नया है बट बहुत सिंपल है ना। प्रिंटिंग का मतलब क्या है? आप जेरोक्स कर रहे हो। स्टेशनरी का मतलब क्या है? फाइल, पेंसिल, पेन, ऑल ऑफ दीज आर यूज्ड इन एन ऑफिस। ऑफिस में इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है फैक्ट्री से, इसके लिए इसको प्रोडक्शन के बाद लिखा जाता है। प्रोडक्शन के साथ में इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन होता नहीं है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो होता है वो होगा पीएनएल अकाउंट में। वेजेस, वर्कर का पगार जो प्रोडक्शन के लिए आता है, मतलब जो प्रोडक्शन फैक्ट्री में आता है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की चीज है। सैलरीज, ये किसका पगार है? ऑफिस के एम्प्लॉइज का, और ऑफिस का मतलब प्रोडक्शन के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैरेज इन वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेज का मतलब क्या होता है? एक ट्रक, एक व्हीकल, और वो कैरेज दो डायरेक्शन की होती है, एक होता है इनवर्ड और दूसरा होता है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब ट्रक आ रहा है, माल लेकर आ रहा है, रॉ मटेरियल लेकर आ रहा है। अगर वो ट्रक नहीं आएगा, फिलहाल जो चल रहा है, जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, काफी जगह पर जो प्रोडक्शन है फैक्ट्री में वो बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया है? क्योंकि ट्रक्स आ नहीं पा रहे हैं, दूसरे स्टेट से एक स्टेट में आ नहीं पा रहे हैं। या हो सकता है कि बाहर विदेश से, क्योंकि एयरप्लेन्स बंद है, वहां से भी माल नहीं आ रहा है। तो जब कैरेज इनवर्ड होता है, वो प्रोडक्शन के पहले आपको ट्रक का पेमेंट करना पड़ता है। ट्रक का पेमेंट नहीं करोगे, आपका कैरेज नहीं आएगा, ट्रक नहीं आएगा, और आपका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। इसके लिए ये प्रोडक्शन से कनेक्टेड है, और इसका मार्किंग है ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स जाता है ट्रेडिंग में, तो सेल्स रिटर्न भी जाता है ट्रेडिंग में। ड्राइंग्स का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन में ओनर्स का नाम है अमर एंड अकबर। जो वो घर पे लेके जाते हैं उसको ड्राइंग कहते हैं। एनीथिंग कनेक्टेड टू पार्टनर्स इज गोइंग टू बी रिटन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देयरफॉर द मार्किंग ऑफ ड्राइंग्स इज partners capital, both of them. Next, discount, very simple. Discount is not a muscle thing but it is a mind thing. दिमाग की जरूरत पड़ती है 10% 20% कैलकुलेट करने के लिए, और माइंड का सारा जो खेल होता है, जो काम होता है, वो होता है पीएनएल अकाउंट में। वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। एडवांस गिवन टू एंथनी। नाउ इट डजंट मैटर कि आप किसको एडवांस दे रहे हो, व्हाट मैटर्स इज आपने किसी को पैसा दिया है, दया धर्म नहीं किया है आपने। यहाँ पे आप कोई चैरिटी नहीं कर रहे हो। आपने अगर एडवांस दिया है, कभी ना कभी 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल में आपका वो एडवांस आपकी जेब में आ जाएगा। व्हाट डज दैट मीन? एडवांस गिवन विल कम बैक इन फ्यूचर। ओके, एग्जाम्पल, आप अगर किसी घर को किराए पे लोगे ना, रेंट पे लोगे, तो आपको डिपॉजिट देना पड़ता है स्टार्ट में। वो डिपॉजिट जैसे ही आप घर खाली करोगे वापस आ जाता है आपके पास। तो जो पैसा वापस आता है, फ्यूचर में रिसीवेबल है, उसको आप एसेट कहते हो। कैश इन हैंड, अपने जेब में है, फायदा होगा कल परसों, डेफिनेटली फ्यूचर में फायदा होगा, इसके लिए एसेट। कैश एट बैंक, हर क्वेश्चन में लगभग आता है। इट इज बेनिफिशियल टू यू, कल परसों तरसों काम आएगा। जब तक बैंक में पैसा है, आप जितना चाहो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, घर बैठे बैठे सारी चीजें आपके पास आ जाएगी। इट्स बेनिफिशियल, फायदेमंद इन फ्यूचर। इंटरेस्ट इज अ मेंटल कैलकुलेशन। व्हाट डज दैट मीन? इंटरेस्ट जब भी होता है ना, परसेंटेज में होता है, 2% होगा, 5% होगा, और माइंड का कैलकुलेशन होता है। माइंड का काम हमेशा होता है ऑफिस में, मीनिंग टू से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
कमीशन, अगेन किसी भी सेल्समैन को अगर कमीशन मिलता है ना तो वो हमेशा होता है, आपको 2% कमीशन मिलेगा, आपको 10% कमीशन मिलेगा। तो कमीशन इज ऑल्सो अ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑलवेज हैपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, पहले भी आपको बताया है मैंने। रॉयल्टी इज अ पेमेंट गिवन टू एन आर्टिस्ट और इट इज गिवन टू एन ऑथर। आर्टिस्ट से आपने क्या लिया, उसका धुन ले लिया, उसका गाना ले लिया, उसके बाद में आपने शूटिंग शुरू की। ऑथर से आपने क्या लिया, लेखक से आपने क्या लिया, उसका आपने कहानी ले लिया उसके किताब से, उसके बाद में आपने शूटिंग शुरू की। मतलब रॉयल्टी होता है प्रोडक्शन के पहले। रॉयल्टी नहीं दोगे, परमिशन नहीं मिलेगा, शूटिंग शुरू नहीं हो सकती है, प्रोडक्शन शुरू नहीं हो सकता है। इट इज बिफोर प्रोडक्शन, देयरफॉर इट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट। परचेसेस मींस you're buying raw material, ये हमेशा होता है ट्रेडिंग के साथ कनेक्टेड। डेबिट साइड इज ओवर, विल गो टू द क्रेडिट साइड। द फर्स्ट आइटम इज कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? ओनर्स मनी। एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू द ओनर्स विल ऑलवेज गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, बिल पेएबल। द वर्ड सेज पेएबल, टुमारो आई विल पे। Whatever you pay tomorrow is called as a liability. What is bank ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स इट्स अ लोन। ये अपना पैसा नहीं है कि आपको मिल गया रख लो, नहीं, कल परसों आपको बैंक को देना ही है। Therefore it is also a liability. Purchase return is connected to purchases. Purchase goes to trading account, therefore purchase return also will go to trading account. Creditor कौन होता है? As usual, again दो चीजें प्लीज ऑलवेज याद रखना, एक होता है डेटर और दूसरा होता है डेटर और दूसरा होता है क्रेडिटर। इन एवरी बिजनेस, हर सम में डेटर हमेशा आएगा क्योंकि कस्टमर्स तो होने ही चाहिए, क्रेडिटर हमेशा आएगा क्योंकि सप्लायर्स होने चाहिए। क्रेडिटर होता क्या है? सप्लायर। आपके घर पे दूध सप्लाई कर रहा है, आपके घर पे न्यूज़पेपर सप्लाई कर रहा है, और उसके बाद में वो आते हैं महीने में एक बार और अपना बिल देते हैं, आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। सो व्हाट इज क्रेडिटर? Payable. Just like this bill payable, creditor also is a person payable. You have to pay him money. Therefore, he is liability. बैंक लोन क्या है? अपना पैसा थोड़ी है, बैंक का पैसा है ना, कभी ना कभी तो वापस देना पड़ेगा तुमको। That is also a liability. कुछ चीजों के लिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि वो रिपीटेटिव है, हर क्वेश्चन में आते रहते हैं। सेल्स, what is this? These are the goods that you are selling. कहां से बेचोगे? जहां पर गोदाउन है, और गोदाउन कहां पे होता है? वो ट्रेडिंग के साथ कनेक्टेड है, तो उसका मार्किंग ट्रेडिंग हो गया। देयरफॉर हम लोग ने पूरा ट्रायल बैलेंस मार्क करा लिया। उसके बाद आते हैं एडजस्टमेंट्स। अभी एडजस्टमेंट्स यहाँ पर 4 है। पहला एडजस्टमेंट स्टॉक। स्टॉक मीन्स व्हाट? आइदर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। देखिए 31st बोला है, 31st का मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक के लिए ना आपको कोई स्टार मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज नोट, ये मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करा दूंगा, आगे कॉस्ट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, ये पूरी कहानी मैं आपको थोड़े टाइम में बोल दूंगा जैसे हम ये सॉल्व करेंगे। दूसरा, डेप्रीशिएट। डेप्रीशिएट मीन्स अ रिडक्शन, अ डिडक्शन इन फर्नीचर। दिस इफेक्ट्स फर्नीचर। फर्नीचर पे इसका असर होता है, तो आपको फर्नीचर के पास जाना है और वहां पर एक स्टार मार्किंग करनी है, स्टार मार्किंग लेटर ऑन। थर्ड, आउटस्टैंडिंग। अगेन एक्सप्लेनेशन बाद में दे दूंगा, अभी सिंपल रखते हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब एक एडजस्टमेंट, वो किस पे इफेक्ट कर रहा है? वेजेस। तो आपको वेजेस के पास जाने हैं और वहां पे आपको स्टार मार्किंग करना है। चौथा, प्रीपेड। ये नया है, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू इन सम टाइम, बट प्लीज अंडरस्टैंड, प्रीपेड इज एन एडजस्टमेंट। इट इज इफेक्टिंग whom? Salaries, printing and stationery. So please find salaries, put a star mark. Please find printing and stationery, put a star mark. That means to say your markings of the step 1 are completely done. So step 1 has now been completed. Now we are starting with step number 2, which is called as empty the trial balance. One by one we will start to empty this entire list of items which is in the trial balance, students. First one, land and building, asset. So we go to the balance sheet and we transfer it. Furniture, again it is an asset, but please remember it has a star marking, meaning there is an
adjustment to it. Balance sheet, inner column. We have to leave a line, draw a line. Next is debtors. It's also an asset. Balance sheet. Next is stock. It's first. First meaning it is opening stock, therefore trading account. Next is bad debts, profit and loss. Bad debts means the money that you have lost because your customer is no longer willing to pay you. Maybe he is ran away with the money. That happens after production. There is this formula for bad debts. We will be writing it in the inner column. Next is printing and stationery. Stationery is those items, pen, pencil, ruler, rubber, which is used in an office setup. That means after production. So profit and loss. It had an adjustment, therefore we have left a single line. Star marking. Wages, which is again trading account, it has a star marking. Leave a line, draw a line. Next is salaries, profit and loss account, star marking, meaning there is an adjustment. I hope you can see it here. We have to go to profit and loss account. Next is carriage inward. It says trading, which we have discussed. Trading account, carriage inward. Next is sales return. It is connected to sales, therefore it is in trading account. Next is drawings. Drawings is connected to partners. Partners जो पैसा घर पर लेकर जाते हैं, घर वालों के लिए, घर के यूज के लिए, उसको ड्राइंग्स कहते हैं. वो हमेशा पार्टनर्स से कनेक्टेड है और पार्टनर का अकाउंट डेबिट साइड पे लिखा जाता है ड्राइंग्स. उसके बाद डिस्काउंट है. डिस्काउंट माइंड कैलकुलेशन होता है जो ऑफिस में होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्लीज याद रखिए ये डेबिट है तो ये डेबिट में जाएगा. एडवांस गिवन टू एंथनी. एडवांस आप किसी को भी देते हो तो वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा. हो सकता है कुछ महीनों के बाद, हो सकता है कुछ सालों के बाद, पर वो पैसा रिसीवेबल है, मिलने वाला है. इसके लिए एसेट साइड मतलब बैलेंस शीट. कैश इन हैंड और कैश एट बैंक इकट्ठे बता देता हूं. दोनों एसेट होते हैं क्योंकि ये दोनों हमको फ्यूचर में काम आएगी. इसके लिए बैलेंस शीट. इंटरेस्ट माइंड वर्क होता है, मेंटल कैलकुलेशन, और कमीशन भी माइंड वर्क होता है, मेंटल कैलकुलेशन. ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं. Let's continue. Next in line is royalties, which is trading account. After which is purchases, again trading account. So our debit side is over. Now we are starting with the credit side. The first item is capital that belongs to the partners. Now everything on the credit will be transferred to the credit side. We have to go to partners capital account on the credit side. Next is bill payable. This is a liability because anything payable जो आपने वादा किया है कि कल मैं ये पैसे दे दूंगा, उसको लाइबिलिटी कहते हैं, तो वो बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी साइड पे. स्टार्ट में आपको करीबन 4 या 5 लाइन खाली रखने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर कैपिटल अकाउंट से आंसर आने वाला है. नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट which is 75,000. Overdraft means a short term loan. कुछ हफ्तों में, दिनों में आपको ये बैंक को लौटाना है. ये भी लायबिलिटी साइड पे जाएगा. उसके बाद आता है परचेस रिटर्न, ट्रेडिंग, क्योंकि ये परचेस से कनेक्टेड है ना, ये वाला परचेसेस, तो आपको ट्रेडिंग में लिखना है. परचेस रिटर्न, प्लीज नोट रिटर्न आउटवर्ड भी इसको कहते हैं. आपने खरीदा
और अगर वो खराब निकला, एक्सपायर्ड निकला, डिफेक्टिव निकला, तो आप आउटवर्ड सप्लायर को उसको वापस दे दोगे। नेक्स्ट इज क्रेडिटर। क्रेडिटर इज अ पर्सन जिसको आपको पैसे कल परसों देने हैं, 1-2 महीने के बाद देने हैं। बैलेंस शीट में जाएगा क्रेडिटर 1 लाख रुपीस। नेक्स्ट इज बैंक लोन। बैंक से पैसा लिया है, किसी से भी अगर आपने पैसा लिया है तो अपना समझ के रख तो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पराया पैसा है, आपको ये 1,13,000 लौटाना पड़ेगा। ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी साइड। आफ्टर दैट our लास्ट आइटम इज सेल्स। सेल्स मतलब आपने गुड्स बेच दिए, जो आप प्रोडक्शन तक रख देते हो, तो उसके बाद में मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में प्रोडक्शन के साथ कनेक्टेड है, आपको ये 5 लाख वहां पर ट्रांसफर करना है ट्रेडिंग अकाउंट। ये पूरा ट्रायल बैलेंस आपने अभी पोस्ट कर दिया है, इसका मतलब है जो स्टेप 2 होता है, एम्प्टी द ट्रायल बैलेंस, ये आपका डन हो चुका है। Now we will be starting with step number 3, which is called as solve adjustments. Let's go to the question. Adjustments यहाँ पे दिए हैं। Please note, आपकी स्क्रीन पर फिट होने के लिए एडजस्टमेंट्स हमने राइट साइड पे दिए हैं, नॉर्मली क्वेश्चन के नीचे रहते हैं। यहाँ पर 4 एडजस्टमेंट है, पहले से स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट्स आपको हमेशा 2 बार लिखने हैं, डेबिट क्रेडिट, फर्स्ट इफेक्ट सेकेंड इफेक्ट। ड्यूरिंग द सोल्यूशन जहां पर भी मैं फर्स्ट इफेक्ट सेकेंड इफेक्ट लिख रहा हूं, प्लीज नोट वो आपके बेनिफिट के लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एग्जाम में प्लीज और कॉलेज में मत लिखना, आपके प्रोफेसर आपको डांटेंगे, तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टॉक, कौन सा स्टॉक है ये? देखिए 31 दिया है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक होगा। आगे जाइए, क्या दिया है? कॉस्ट प्राइस 1,50,000, मार्केट प्राइस 2 लाख। अब ये नया है, आपको जल्दी से सिखा देता हूं मैं। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में अकाउंटेंसी में एक रूल आपको फॉलो करना है। वो रूल क्या कहता है? लेट्स सी। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा वाला वैल्यू नहीं लेना, आपको कम वाला वैल्यू लेना है। अभी ऐसा क्यों है कि ज्यादा वैल्यू लेना क्यों नहीं है? क्योंकि नॉर्मली आप अगर कोई भी चीज किसी को बताते हो तो कम में नहीं बताओगे, ज्यादा में बताओगे। क्लोजिंग स्टॉक में क्या मामला है? हर प्रोडक्ट के 2 प्राइजेस होते हैं, एक कम वाला प्राइस होता है, एक ज्यादा वाला प्राइस होता है। उसी तरह एक दुकान के अंदर का एरिया होता है, एक दुकान के बाहर। आपको याद रखना है, दुकान के अंदर कम वाला वैल्यू चलता है, दुकान के बाहर ज्यादा वाला वैल्यू चलता है। प्लीज नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। दुकान के अंदर कम वाला वैल्यू, दुकान के बाहर, क्योंकि कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाता है ना दुकान के बाहर, तो बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट जोड़ के एक्स्ट्रा प्राइस में देता है उसको। याद रखिए, क्लोजिंग स्टॉक किधर का सामान है? दुकान के अंदर। काफी बार आपने देखा होगा बिजनेसमैन को अपने कुछ डिब्बे प्रोडक्ट्स वो ना फुटपाथ पे रखते हैं दुकान की थोड़े बाहर, पर शाम को जब दुकान बंद करते हैं तो उसको रखते नहीं है वहां पर, अंदर ले लेते हैं। मतलब क्लोजिंग स्टॉक दुकान के अंदर का माल है और दुकान के अंदर कम वाला वैल्यू चलता है, विच एवर इज लेस। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। क्वेश्चन में जाते हैं, तो यहां पर 1,50,000 कम है, 2 लाख ज्यादा है, तो आप लोगे विच एवर इज लेस, विच इज 1,50,000। अभी इसके 2 इफेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट इफेक्ट के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है, क्रेडिट साइड पे ये पहले से लिखा गया है। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट कहां पे आता है? क्लोजिंग स्टॉक, मैंने अभी बताया ना आपको, दुकानदार वो माल अंदर ले लेता है, पर कल वापस से जब दुकान खुलेगा वो वही माल बेचेगा और पैसे कमाएगा, तो उसको फायदा होगा ना, तो ये कल फायदा देता है। इसके लिए इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाता है। ओके, लेट्स गो अहेड। सेकेंड एडजस्टमेंट, डेप्रीशिएट। इसमें क्या कहा है? फर्नीचर को आपको डेप्रीशिएट करना है। व्हाट डज डेप्रीशिएट मीन? यू हैव टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। क्यों? फर्नीचर आपके घर पे अगर होगा, लेट्स से
प्लास्टिक का चेयर होगा या वुडन चेयर होगा, सोफा हो सकता है, इतने सालों से आप यूज कर रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा घिसना स्टार्ट हो जाता है, उस पर खरोचे आ जाती है, स्क्रैच मार्क आ जाता है, जिसकी वजह से उसका वैल्यू कम हो जाता है, उसको डेप्रीशिएट कहते हैं। तो सबसे पहले डेप्रीशिएट का इफेक्ट कहां पर जाएगा? फर्स्ट इफेक्ट फर्नीचर में। फर्नीचर तो एसेट में होता है, तो एसेट में जाते हैं। एसेट में फर्नीचर पहले से ही लिखा है। डेप्रीशिएट का मतलब सबट्रैक्शन होता है, तो उसका इफेक्ट ऐसे है, माइनस डेप्रीसिएशन, फर्स्ट इफेक्ट। अगेन याद दिला देता हूं, प्लीज कॉलेज में मत लिखना फर्स्ट इफेक्ट, एग्जाम में तो बिल्कुल मत लिखना, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ओके, 20% कैसे ढूंढते हैं? अगर 1 लाख का एक जीरो आप निकालो लास्ट का, तो आपके सामने 10% आता है, 10,000। 20% का मतलब है डबल कर दो, दुगना, 20,000। सो 20% 20,000 आता है। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट आप कहां पे दोगे? देखिए, आपने कोई कैलसी का यूज तो नहीं किया, पर आपने आपकी माइंड का यूज किया है। हमने ये कहां पर लिखा नहीं है, दिमाग में ही हमने 20,000 का कैलकुलेशन कर लिया। एंड माइंड कहां पे होता है? वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड पर। डेप्रीसिएशन एक नुकसान होता है, देयरफॉर डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऐसे। नेक्स्ट, थर्ड, आउटस्टैंडिंग। अब मैं दो चीजें आपको साथ में समझा देता हूं, रीजन है ये दोनों कनेक्टेड है, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। कभी कभी खर्चे जो होते हैं, खर्चे, वेजेस एक खर्चा है, सैलरी एक खर्चा है, प्रिंटिंग एक खर्चा है, रेंट एक खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट एक खर्चा है, वो कभी कभी या तो आउटस्टैंडिंग होते हैं या तो कभी कभी प्रीपेड होते हैं। मतलब कभी कभी आप ये खर्चा कम भरते हो, कभी कभी आप ये खर्चा ज्यादा भरते हो। ओके, कम भरा तो उसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा भरा तो उसको क्या कहते हैं? प्रीपेड कहते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको जल्दी से आउटस्टैंडिंग का छोटा सा नोट्स बता देता हूं। ओके, एडजस्टमेंट 3 में आउटस्टैंडिंग दिया है, लेट मी रीड दिस फॉर यू। आउटस्टैंडिंग मींस टुडेज एक्सपेंसेस, आज का खर्चा, विच इज अनपेड, आपने पैसे दिए नहीं है, मे बी जेब में पैसे खत्म हो गए, एटीएम में पैसा खत्म हो गया। These expenses are promised to be paid in future, क्योंकि आपने किसी का पेमेंट नहीं किया है, कारपेंटर का पेमेंट नहीं किया, प्लम्बर का पेमेंट नहीं किया, इलेक्ट्रिशियन का पेमेंट नहीं किया, क्योंकि जेब में पैसे खत्म हो गए। तो आप उनको प्रॉमिस करते हो कि भाई साहब कल आ जाओ, आपका मैं पेमेंट करा दूंगा। इसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग। आप इसको डील कैसे करोगे? मैंने लिखा है नीचे, आउटस्टैंडिंग मीन्स, थोड़ी इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर, आज का खर्चा, क्योंकि वो आज का है, उसके लिए क्या साइन होता है? प्लस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना और अंडरस्टैंड करना कि आउटस्टैंडिंग आज का है, इसके लिए आप करोगे प्लस। उसी का बिल्कुल उल्टा प्रीपेड होता है, ये एडजस्टमेंट 4 में आने वाला है। प्रीपेड का मतलब क्या है, प्लीज पढ़ लीजिए। प्रीपेड मीन टुमारोज एक्सपेंसेस। देखो ऊपर क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग मीन्स टुडेज, टुडेज होता है प्लस, प्रीपेड मीन्स टुमारोज, टुमारोज क्या होता है? माइनस। मतलब ये आज का खर्चा नहीं है, आपको आपकी जेब से ये पैसा देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर अगर आप पैसा दे देते हो, एक हफ्ते के बाद का है आज ही दे दोगे, एक महीने के बाद का है आज ही आपने ये खर्चा कर लिया, तो ना आपको कुछ फायदा होता है इसका, इसके लिए आप ये पैसे एडवांस में देते हो। क्या कहा है देख लीजिए, प्रीपेड मीन्स टुमारोज एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, दीज एक्सपेंसेस आर पेड बिफोर दे अराइज। अराइज का मतलब क्या है? वो पैदा ही नहीं हुआ पर आपने पैसे पहले ही दे दिए। अब ऐसा क्यों है कि आप पैसे पहले ही दे देते हो, समय के पहले? एग्जाम्पल, आपका केबल वाला अगर आपसे हर महीने 100 रुपीज लेता है केबल के चार्जेस, तो सिंपल गणित कर लीजिए, मैथ्स, 12 महीने का कितना हो जाएगा? 1200। पर केबल वाला आपसे क्या कहता है कि सर मैडम, आप ना एक महीने का पैसे मत दो, आप मेरे को पूरे 12 महीने के पैसे एक साथ में दे दो, पर 1000 देना, 1200 मत देना। तो ऑब्वियस है आपके दिमाग में ये क्लिक जरूर होता है, अरे अगर मैं हर महीने दूंगा तो मुझे 1200 देना पड़ेगा, पर अगर मैं एक साथ अभी के अभी दे देता हूं तो मुझे सिर्फ 1000 देना है। मतलब क्या है? आपको 200 का फायदा हो गया। इसके लिए लोग
एक्सपेंसेस पहले ही भर देते हैं क्योंकि उनको कुछ फायदा मिल जाता है। तो प्रीपेड होता तो कल का खर्चा है, इसके लिए उसको क्या करना है, माइनस। ओके, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, आउटस्टैंडिंग टुडेज एक्सपेंसेस प्लस prepaid tomorrow's expenses minus. Now let's go and solve these. In the question, outstanding wages. Outstanding means plus आज का खर्चा। ओके, ये आपके दिमाग में आप फिट कर लो। आउटस्टैंडिंग मतलब आज का प्लस, प्रीपेड मतलब कल का माइनस। वेजेस कहां पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाइए, वेजेस में आज का प्लस करना है। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट का मतलब क्या है, प्रॉमिस टू बी पेड टुमारो, कि भाई साहब कल आना और तुम्हारा पैसा लेके जाना, तो इसको पेएबल कहते हैं। ये आप कहां पर लिखोगे, लाइबिलिटी में, मतलब बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड। दिस इज योर थर्ड एडजस्टमेंट। फोर्थ इज प्रीपेड। प्रीपेड, व्हाट हैव आई एक्सप्लेन टू यू, प्रीपेड का मतलब है कल का खर्चा, तो उसको क्या करना है, माइनस, सब्ट्रैक्ट। किससे करोगे, सैलरी से। सबसे पहले सैलरीज कहां पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस। सैलरीज इज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फ्रॉम हियर यू विल बी डूइंग सब्ट्रैक्शन, which is 5000 minus. Similarly, क्वेश्चन में आप नोटिस करोगे, even printing and stationery is prepaid. So you have to go to printing and stationery, which is again in P&L account, and from here आपको माइनस करना है प्रीपेड, क्योंकि वो कल का है। ये दोनों फर्स्ट इफेक्ट हो चुके हैं। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, अब मैंने क्या एक्सप्लेन किया था आपको कि अगर आप कल का खर्चा, एक महीने के बाद का खर्चा, अगर 2 महीने के बाद का खर्चा आप पहले ही भरोगे तो उससे आपको फायदा होता है, क्योंकि आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। अगर एक पिक्चर 2 हफ्ते बाद रिलीज होने वाली है और उसकी आप बुकिंग आप आज ही करोगे तो फिर टिकट आपको कंफर्म मिल जाएगी। अगर आप ट्रेन में बैठकर गांव जाने वाले हो, भले ही उसके लिए 4 महीने क्यों ना हो, पर अगर उसकी बुकिंग आप आज कराओगे तो वो जो सीट है वो आपके लिए कंफर्म होती है। इसके लिए आप आने वाला खर्चा 2-3 महीनों के बाद का पहले ही कर देते हो, आज ही आप वो पैसा देते हो, क्योंकि आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो इसका सेकेंड इफेक्ट, दोनों प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। यहां पर सेकेंड इफेक्ट ऑफ प्रीपेड सैलरी एंड सेकेंड इफेक्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बाय डूइंग दिस you have right now finished step number 3, which is solve adjustments. Now students, we will be starting with our fourth step, which is tally the accounts and balance sheet. इसके पहले आप श्योर कर लीजिए, पक्का कर लीजिए कि जो भी आपका प्लस माइनस का हिसाब था वो आपने पूरे सम में रेडी रख दिया है। एग्जाम्पल, हम ट्रेडिंग अकाउंट से कंफर्म करना स्टार्ट करते हैं। परचेसेस इनर कॉलम में है, प्लीज उसको बाहर डाल दीजिए। वेजेस इनर कॉलम में है, उसको बाहर डाल दीजिए। लाइक दिस इन द एंटायर सम, इनर कॉलम इज रफ वर्क, मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेगी अगर आपने यहाँ पे मेहनत की है। इसका आंसर बाहर आपको डिस्प्ले करना ही पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले परचेसेस का आंसर बाहर डाल देते हैं 1,45,000। उसके बाद में वेजेस का आंसर 35,000। अभी आपकी मर्जी है, यू कैन डू दिस राइट नाउ या पहले भी आप कर सकते हो। इट इज जस्ट दैट कंफर्म कर लो कि टोटल सारे बाहर गए हैं। इसके बाद सेल्स का बाहर चला जाएगा 4,95,000। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आंसर 20,000 minus 2,000 will go outside, 18,000। सैलरी 15,000 minus 5,000 will go outside, 10,000। The bad debt formula has nothing below, only 10,000. So please shift this outside. Go to the next account, which is partners capital account. Here there is no plus and minus to be done. Next, balance sheet. The only one item that I see that requires the plus and minus is furniture. Subtract
80,000. Okay. Now that you have done this and confirmed, let us start with our procedure of casting. ये शुरू होगा ट्रेडिंग अकाउंट से. ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्या करना है, रफ टोटल डेबिट का यहाँ पर और क्रेडिट का यहाँ पर. लिख कहाँ पर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट याद रखिए कि ये रफ वर्क है. ये आपको आपके एग्जाम्स में, कॉलेज के एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में ये आपको दिखाना नहीं. आप पेंसिल में लिख के रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स स्टार्ट. डेबिट का टोटल कर लेते हैं 2,89,000. क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं 6,45,000. Now very quickly compare between these two. Credit is heavy, so that heavy total is written in the grand total, the last line of the totaling. Therefore we'll write like this: credit, and then on the debit side, credit total minus debit total will give you the answer of trading account. So the answer is as follows: 3,56,000. What do we call this? Gross profit. Now we have done this on 2 or 3 occasions. प्रॉफिट का आंसर ये क्यों आता है, क्योंकि क्रेडिट में हम इनकम लिखते हैं, कमाई. तो ये बिजनेस ने कमाया है 6,45,000 और खर्चा हुआ है 2,89,000. तो खर्चा कम है, इसके लिए प्रॉफिट हुआ है. ये प्रॉफिट यहाँ से कैरी डाउन, मतलब कैरी करना है और आपको नेक्स्ट अकाउंट में लेके जाना है. नेक्स्ट अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्रेडिट साइड पे आपको इसको ब्रॉट डाउन करना है 3,56,000. अब कास्टिंग का प्रोसीजर यहां पर भी करना है. हर अकाउंट में कास्टिंग करना पड़ता है. कास्टिंग का मतलब डेबिट का टोटल लिखो, क्रेडिट का टोटल लिखो. ओके, सो डेबिट का टोटल रफ वर्क में लिख लेते हैं 69,000. क्रेडिट वेरी सिंपल बट स्टिल प्रोसेस है ना, तो हम लोग फॉलो कर लेते हैं 3,56,000. अब हैवी ये हो गया क्रेडिट, तो उसको ग्रैंड टोटल में आप लिख लो. ओके, तो ये हो गया 3,56,000. 3,56,000 minus 69,000 will give you the difference, which is okay 2,87,000. इसको क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट. तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आता है उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट मतलब लास्ट का प्रॉफिट, ये चला जाएगा ओनर्स की जेब में. तो 2,87,000 पे दो लोगों का हक बनता है जो ओनर्स है. ओनर्स के नाम हमारे इस सम में है अमर और अकबर. अभी अमर के झोली में कितना जाएगा, उसका कितना हक बनता है, अकबर का कितना हक बनता है, वो ये सम के बिगिनिंग में हमने डिस्कस किया था. 3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अभी आपको वो यूज करना है. So 2,87,000 multiply by 3/5. This will give you Amar's share of profit, which is 1,72,200. Similarly, 2,87,000 multiply by 2/5 will give you 1,14,800. बेसिकली प्रॉफिट जो होता है उस पे दोनों मालिक का हक होता है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है. अभी ये आपको ओनर्स को ट्रांसफर करने हैं. तो ओनर्स का अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड पे. क्रेडिट में क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 2 है, 2, तो इसका सेकेंड इफेक्ट होता है बाय. तो हमने दोनों प्रॉफिट दोनों को दे दिए. प्लीज नोट, ये सम में मैंने पार्टनर्स कैपिटल एक अलग स्लाइड पे बनाया है और बैलेंस शीट अलग, ताकि ये आपको क्लियरली नजर आ सके. दोनों एक पेज पे जब बनते हैं तो थोड़ी डिफिकल्टी होती है देखने में, इसके लिए. ओके, अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको कास्टिंग करना है. अगेन सेम, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल 2 बार करना है क्योंकि दो पार्टनर्स है. तो स्टार्ट करते हैं. 4,000 अमर का रफ टोटल डेबिट, अकबर का 4,000 डेबिट. क्रेडिट का टोटल अमर और अकबर. तो ये रफ टोटल्स हो गए. इसके बाद में कास्टिंग. अमर का पहले कीजिए, उसके बाद में आप अकबर का कर सकते हो. अमर का क्रेडिट हैवी है तो ये दोनों साइड पे आप लिख लीजिए. एंड देन प्लीज राइट द डिफरेंस, विच इज 3,18,200. Similarly, please do it for Akbar also.
and find out his difference, which is 2,60,800. Now what is this called? To balance carried down. Now if you are confused, balance का मतलब क्या है? बैलेंस का मतलब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बच गया. अभी कैपिटल में बचेगा क्या? कैपिटल ही तो बचेगा. हाँ, तो याद रखिए ये दोनों कौन से कैपिटल है? क्लोजिंग. क्लोजिंग क्यों? क्योंकि ये लास्ट डे पे आए हैं. अभी फर्स्ट डे का कैपिटल कहां पे गया? यहाँ पे ध्यान दीजिए. दिस इज व्हाट यू राइट एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. दिस इज द ओपनिंग कैपिटल. मालिक का पैसा फर्स्ट डे पर, मालिक का पैसा लास्ट डे पर. ओनर्स मनी कीप्स ऑन चेंजिंग because whatever the owner puts into the business, it doesn't remain same. Whatever profit he earns, his capital increases. Whatever losses happens, his capital decreases. So the capital on the first day, which is this, and the capital on the last day, they fluctuate. Okay. Now this capital's closing will go to the balance sheet. Reason is because the balance sheet is prepared on the closing date. Where will it go? Capital account, you see 2, this is a debit, so it has to go to the credit. In the balance sheet, the credit is liability side. We don't write it, but you should know it that liabilities are credit. Okay, so let's start. Okay, so we have transferred the capitals. Now the total will be transferred in the outer column. After this is the cherry on the cake, that is the very last step, okay, in which we are constantly praying that both of these should come the same. Okay, if they don't come the same, then accounts commerce students get kind of a heart attack, and then it's difficult to find out where is the mistake done. Okay, so let's do the totaling of both the sides. First is the liability side, which is 9,72,000, as well as the asset side, which is also 9,72,000. So congratulations to all of you. We have been successful in tallying this sum. Now what does this mean? As far as steps are concerned, we have successfully done our step number 4, which is tally the accounts and balance sheet. Hooray, we are at the end of this sum. Okay students, now this is going to be your homework question. I'll quickly read this. Sun and Moon are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Again, like has been the trend, the homework question is very similar to what I have solved just before in this video. So for any explanation in detail concerning any item in the trial balance, concerning any adjustment, you can always go back and listen to the explanation and then solve it in this particular homework. Right now, it is my request that this trial balance markings can be tried by you orally. I understand you cannot write on your screen, but yes, you can orally do it. You can pause the video and then we can continue the markings. Then you can compare the markings with what I'll be giving you in a few seconds. So this is not magic. Obviously, this was done so that you had the required time to get the markings through. But let's go through this as to what markings have you done. Purchases is trading because it is connected to the production part. Royalties is paid before production, trading. Commission is a mental calculation, therefore it is profit and loss. Interest is a mental calculation, mind calculation. It is profit and loss. Every time in every final accounts question, 90% elements remain the same. So I will not be explaining to you again and again, but I'll try my best if it is a difficult item to give you the necessary explanation. Cash at bank is an asset, so it is useful for you in future. Land and building also is an asset because it is useful in future. Equipment, okay, आपके घर पे अगर let's say washing machine है उसको आप equipment कह सकते हो, ironing machine है उसको आप equipment कह सकते हो, मशीनरी भी होता है वो equipment भी होता है, सेम होता है almost, okay? तो वो फ्यूचर में काम आता है, एक दिन के बाद आप उसको फेंक नहीं देते हो, वो काम आता है. एसेट. डेटर्स कस्टमर्स है तो ही हमारा बिजनेस फ्यूचर में आगे जा सकता है, तो वो भी एसेट हो गया.
स्टॉक लिखा है और 1 तारीख लिखा है, मतलब ओपनिंग स्टॉक हुआ ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट। ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में एक फिक्स्ड चीज है, कभी बदलने वाला नहीं है। बैड डेट मतलब नुकसान हो गया। बैड डेट का हमारा एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये आपको उसके सबसे फर्स्ट लाइन में लिखना है। बैड डेट 5000। कैश इन हैंड, अपने हाथों में जो पैसा होता है या अपनी जेब में पैसा होगा, काम आता है ना कल परसों तरसों फ्यूचर में, तो वो भी एसेट है। एडवांस गिवन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। एडवांस आप कि कौन से मजनू को देते हो, रोमियो को देते हो, उससे कोई फर्क नहीं गिरता है। एडवांस आपने दिया है, ओके, मतलब क्या है, कोई मेहरबानी नहीं आप कर रहे हो, वो पैसा आपको वापस चाहिए। आप रोमियो को बोलोगे अच्छा कि रोमियो 2 हफ्ते के बाद, 2 महीनों के बाद, 1 साल के बाद में मेरा पैसा लाके मेरे को देना, उसका एक डेडलाइन होता है, तो ये रिसीवेबल है, वापस से मिल जाएगा हमको फ्यूचर में, तो ये एसेट होता है। डिस्काउंट माइंड का काम होता है, मेंटल कैलकुलेशन, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस। ड्रॉइंग्स का मतलब मालिक जो घर पे लेके गया, घर वालों के लिए लेके गया, तो ये पार्टनर से कनेक्टेड है ना, तो इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग का काम, जेरोक्स का काम सब ऑफिस में होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, इसके लिए मार्किंग। वेजेस पगार है वर्कर्स का, फैक्ट्री का, तो ये हो गया ट्रेडिंग। सैलरी भी पगार है पर ऑफिस के कर्मचारी का, तो प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या है? कैरेज का मतलब गाड़ी, ट्रक हो सकता है, टेम्पो हो सकता है। अगर वो कैरेज माल लेकर आ रहा है तो उसको इनवर्ड कहते हैं, वो प्रोडक्शन के पहले होता है, तो कैरेज इनवर्ड होता है ट्रेडिंग अकाउंट। बट आउटवर्ड का मतलब क्या है? माल से फिर प्रोडक्ट बन चुका है, अब वो प्रोडक्ट डिब्बे में डाला गया है, अच्छे से उसको पैक किया गया है, अब उसको मार्केट में लेके जा रहे हैं बेचने के लिए, तो प्रोडक्शन खत्म हो चुकी है। पोस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद, इसके लिए कैरेज आउटवर्ड 8000 जाएगा प्रोडक्शन के बाद, जो है प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स रिटर्न सेल से कनेक्टेड है, इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। ये हो गया आपके डेबिट की चीजें। क्रेडिट, बिल पेएबल, सरनेम से पता चल जाता है, पेएबल कल मेरे को पैसे देने हैं, तो वो लाइबिलिटी। ओवरड्राफ्ट का मतलब छोटा कर्जा, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, उसके बाद में बैंक से एसएमएस जरूर आ जाएगा, ओके, कि आपका जो बैलेंस है नेगेटिव हो चुका है, आपको ये पैसे बैंक को देने हैं, तो आपको देना पड़ेगा, तो वो भी लाइबिलिटी। परचेज रिटर्न परचेज के साथ कनेक्टेड है, परचेज होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो परचेज रिटर्न भी ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट है। बैंक लोन मतलब बैंक का पैसा, ओके, ये होता है लंबा कर्जा, ओके, कुछ सालों का होता है, तो आप इसको दे सकते हो, बट देना जरूरी है फ्यूचर में, लाइबिलिटी। क्रेडिटर इज अ पर्सन, एक इंसान है जिसको आपने वादा किया है कि भाई कल आ जाना, परसों आ जाना, 1 महीने बाद आ जाना और अपने पैसे लेकर जाना, ओके, उसको कहते हैं लाइबिलिटी। कैपिटल मालिक का पैसा है, ये है ओपनिंग कैपिटल, ये आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करोगे। इसके बाद आते हैं एडजस्टमेंट्स। सम एडजस्टमेंट्स, ऑल एडजस्टमेंट्स आर सिमिलर टू व्हाट आई हैव डन प्रीवियसली इन दिस वीडियो। लेंदी एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए, प्लीज यू कैन गो बैक एंड वॉच दैट एक्सप्लेनेशन। आई विल जस्ट गिव यू द मार्किंग्स। स्टॉक ऑन 31st March, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, इसका कोई मार्किंग नहीं होता। हाँ, 2 प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, जो कम है विच एवर इज लेस वो लेना है आपको, कॉस्ट प्राइस। डेप्रीशिएट इक्विपमेंट, डेप्रीशिएट इक्विपमेंट के लिए आपको इक्विपमेंट में जाना है और उसका स्टार मार्किंग करना है। 1 स्टार का मतलब लीव अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है आज का खर्चा, तो उसको प्लस करना है। कमीशन है तो कमीशन में चले जाओ, उसको मार्क कर लो। प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब कल का खर्चा, ये सबट्रैक्ट होता है। 2 चीजें, कैरेज इनवर्ड और रॉयल्टी, तो कैरेज इनवर्ड में चले जाओ आप, वहां पे कैरेज आउटवर्ड में, आई एम सॉरी अबाउट इट, कैरेज आउटवर्ड में चली जाइए, उसको मार्क कीजिए। रॉयल्टीज में चले जाइए, उसको मार्क कर लीजिए। दिस इज द मार्किंग्स ऑफ योर एंटायर होमवर्क सम। Okay, I'm back. Now students, we are at the end of this particular lecture. I hope everything has been understood by you, but there's a possibility कि आपको एक आध एडजस्टमेंट, एक आध चीज जो ट्रायल बैलेंस में डिस्कस की गई थी वो नहीं समझा है। प्रॉब्लम नहीं है, काफी सारे क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं, पर आपका फीडबैक बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, ये वीडियो हो, कोई भी डाउट्स या प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चंस किए हैं उसके डाउट्स, वो डाउट्स जो है ना आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर डाउट्स, प्लीज डू नॉट
कलेक्ट योर डाउट्स। ये कोई बैंक की तिजोरी नहीं है कि 6 महीने के बाद में मैं सारे डाउट्स सर के पास में एक साथ में लेकर आ जाऊंगा। इस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल पाता है। तो प्लीज उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स आप लिख दीजिए। डाउट कभी क्या होता है ना, कभी आपका भी होता है, बट आप जैसे काफी लोगों का होता है। तो ये सारे डाउट्स जो है, ये सारे कमेंट्स में पढ़ लूंगा और इकट्ठा ऑर्गेनाइज करके एक बार आने वाले जो वीडियोस है उसके अंदर वो डाउट्स का मैं क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। आपको भी हेल्प करेगा और जो बाकी के बच्चे हैं जो ये वीडियो देखने वाले हैं उनको भी हेल्प करेगा। तो प्लीज कमेंट सेक्शंस आर ऑलवेज अवेलेबल, योर सजेशंस आर ऑलवेज अवेलेबल, not just concerning the particular question, not just the accounting, the accounts which is being discussed, but if you think in some manner we can improve these particular videos. Okay, I'm not a professional at this in any manner whatsoever as of now. I am constantly improving little by little. Your suggestions matter a lot. They are very, very precious. So please, whether it is doubts concerning the questions and the accounts, or whether it is concerning the quality or the improvement of the presentation of these particular videos in which we solve different questions, please utilize the comment section and post your comments. They are always going to be welcome and acted upon and improved upon in upcoming videos. Till the time we meet again, it's bye for now. Take care.